Good afternoon, everyone. Really a pleasure and privilege to be here in front of all of this, this set of people. Really, Anant, it's always lovely to hear you, and you always bring such a fresh and different perspective every time I hear you, and that just makes me richer in my knowledge and my awareness levels as well. So thank you. And I came in a little late, but I had, I could listen to a lot of the conversation around AI. Uh, so rich. All the conversations were really rich, and thank you for having us here. Our teams are here, and we're all really glad to be, a part of this conversation. Thank you, Sonal. Thank you, Team Protsahan. I've been asked to talk about collaboration, and that's something that's really close to us, not because collaboration is an inward. For us, it's just been a choice, and that's something that we believe, that collaboration is a choice you make, and it's not easy. Collaboration is never easy. People think that collaboration is easy, दो लोग साथ में आ गए और दोस्ती हो गई और हम साथ साथ चले, but collaboration actually is so much more complex. It's so difficult. It's so easy again to say that, oh, we have shared vision and we will work together, but it doesn't come easily. What comes easily, though, and that's been our learning, is the intent to collaborate. If we are really strongly feeling and we are intentional about coming together as organizations, we will figure out how to go through conflict, how to get through pieces that are muddy, that are hard, that are difficult, and they don't really sit well in the beginning. And our conversation with Protsahan began just because we were intentional about it. We were very intentional in making a choice at Miracle that, if there are experts that already exist who are doing amazing work already, they have years of research, they have experts, they have people that they have invested in. And Sonal says this very beautifully, that whatever we do as development sector people, organizations, is public money. Someone has funded us, someone has invested in us to do this work, and whatever we build out of this is for everyone to use, is for everyone to learn from, and for everyone to look at and figure out where it fits the larger environment, rather than everyone trying to do what already has been done, or to waste resources. It seems harsh, but it is a wastage of resources if multiple people in the same space are doing the same thing again and again, year after year. So for us, collaboration has been a choice. It's just and I do want to talk about what Anand said, and for us that's also again another choice. For us, one of the questions we asked at the beginning of our, when we were doing re-strategy about 3-4 years back, and we said, can we do this alone? Can Miracle do this alone? Does Miracle need recognition of doing it alone? We said no, it doesn't matter. At the end of all our work is a child and a family that surrounds that child, an ecosystem that surrounds the child. And if that's the purpose, if that's the goal, then we have to collaborate. Collaboration के बिना ये हम कर ही नहीं सकते. And when we are looking at collaboration, it means, of course, development sector partners. It also means governments. The way we have been able to work in India in the last 25 years, more so in the last decade, is because governments have opened their doors to us. Governments have come in and said, can we work together to solve a specific problem? And that's also been muddy, that's been messy, but it's been a beautiful journey again, because we have all learned together. And we can name and frame this differently. We call it systems change, we call system strengthening, we call it collaboration, we call it participation, co-creation, design thinking. There are many words for this, but at the end of the day, it means coming together of organizations and building something together, or co-owning responsibility and sharing resources with an open mind. Really grateful for our partnership with Protsahan. We are very, we work with close to 7,000 social workers across the country, and we are very keen that we are, when we train our social workforce, we are able to take
this collaboration to that entire social workforce, and that the important pieces, from right from trauma informed care of the set of social workers that are struggling under a lot of workload and lack of resources, maybe just slight nudge, the right resources, the intuitive learning platform that Careverse is bringing to the children and social workforce. We believe that can really expedite the learning pace, and we hope that this collaboration is here for stay, and we will work through all the lovely pieces together, and we'll stay intentional about working together as partners in change, keeping children at the core of our work. Thank you. हाय, नमस्ते। आज यहाँ पे आप सबसे मिलके एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगता है। और जैसे अनंत कह रहे थे कि समहाउ ये जो बातचीत करने का जो मौका मिल रहा है वो कम होते जा रहा है शायद। जो लोग बच्चों की सेफ्टी पे जो हमारे को वो इतनी बड़ी और इतनी रेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मतलब हम इतने ब्लेस्ड हैं हर बंदा इस कमरे में कि हमको ये अब हमारे हाथों में ये धरोहर मिला है, और इसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए। लेकिन हमें हर तरीके से जो बोला जाता है या जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि अच्छा आपकी तो मतलब बदकिस्मती है कि आपको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि इस जगह में हम पैसे कम डालेंगे, इस जगह में अर्जेंसी नहीं है, इस जगह में हम किसी तरह निकाल लेंगे। मतलब जैसे आज आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रही थी, मैं आई थी बहुत प्रिपेयर्ड कि हम बोलेंगे कि लॉ में चेंज होना चाहिए। जो सोनल का जो इतना सुंदर आइडिया है केयरवर्स का, वो अगर हम पूरा कर पाएँ कि क्योंकि ये रियलिटी है कि सिर्फ बच्चों के साथ अकेले काम करने से नहीं होने वाला है ना। जो परपेट्रेटर है या जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिसकी ड्यूटी बनती है, वो सब हम ही लोग हैं, हम ही बड़े लोग हैं। और एक ऐसी सोसाइटी में जिसकी नींव ही है ना कि बड़े लोग बुज़ुर्ग लोगों की बात सुननी चाहिए और बच्चों की नहीं सुननी चाहिए। Ageism is part of our DNA, right? And therefore children are the last. कि when we look at them, what do we see? Do we see, मैं बहुत I hear a gamut of things, right? एक रिसोर्स है, ये मेरी फैमिली के लिए एक रिसोर्स है, नहीं तो मैं इसको ओन करता हूँ। जो अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं वो बच्चे को एक मिट्टी की चीज़ समझते हैं कि इसको मोल्ड करना मेरा काम है। हाँ, या लोग बोलते हैं कि हाँ ये फ्यूचर, मतलब मैंने कितने लोगों को देखा है कि हम लोग ये लेज़ी तरीका चूज़ कर लेते हैं डोनर को परसुएट करने का, कि सपोर्टर को परसुएट करने का। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो ये बच्चे के फ्यूचर का क्या, मतलब कंट्री के फ्यूचर का क्या होगा? अरे भाई, बच्चे ही मिले थे हमको ये पूरी कंट्री का फ्यूचर ढालने के लिए। बच्चे ही मिले थे कि मुझे याद है एक फैशन डिज़ाइनर को सुनते हुए टीवी पे कि अगर हम ये बच्चों को मतलब चाइल्ड लेबर में डाल के ये कला नहीं सिखाएंगे, कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह की बात कर रही थी, तो वो बेचारी एम्ब्रॉयडरी मर जाएगी। और मैं सोच रही हूँ मतलब हमें बच्चे ही मिले थे कि ये कंट्री का फ्यूचर, ये कंट्री का हैंडीक्राफ्ट का फ्यूचर, ये सब हमारे इनके ही नाजुक हाथों में है। तो ये जब तक एटीट्यूड हम बदलेंगे नहीं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बच्चे आते हैं इस दुनिया में बिकॉज हम उनकी हिफाजत करें, कि हम उनको एक चांस दें कि वो एक पूरा बचपन लिव कर सके, that they can just be happy and being children, that they get the protection, the food, the development, everything that they need here and now,
नॉट बिकॉज अरे आई हैव हैड पीपल टेल मी कि मैं इसलिए आपको पैसे दे रही हूँ क्योंकि अगर वो आज तो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, कल क्रिमिनल्स बनेंगे, मेरे घर में चोरी करेंगे. You know, so it is really, this is an attitude that I think all of us have to confront and not take the lazy way out and not agree with these narratives and say नहीं, actually जो हमारे resources हैं भारत की, कंट्री की, घर की, फैमिली के स्तर पे, स्टेट के स्तर पे, उसका सबसे पहला हकदार बच्चे होने चाहिए. कि जैसे मतलब मैं हमेशा कहती, मैं इट्स नॉट दैट आई एम अ पोलिटिकल एनिमल, आई एम नॉट वेरी, बट आई ऑलवेज लुक एट एवरी थिंग फ्रॉम अ बच्चों का एंगल. कि जो आप गवर्नमेंट ने किया गवर्नमेंट स्कूलों के लिए, क्या करके, सिंपल कि रिसोर्स डालो, है ना, कि आप अप्रूव कर सकते हो कि गवर्नमेंट्स के स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो सकती है, वहाँ लोग अपने बच्चों को भेजेंगे अगर पढ़ाई अच्छी होगी. इस सिर्फ ये कॉन्सेप्ट प्रूव करने के लिए जो अभी हम जिसको फेस कर रहे हैं वो ये है कि भाई सब कुछ प्राइवेट में दे दो, इनसे तो होगा नहीं, राइट, हमसे नहीं होगा. एवरीबडी आई मीट सेज हमसे तो नहीं होगा, आप NGOs कर लो, या अब तो अब NGOs का साइड में हो गया, कॉर्पोरेट्स करो. यू नो, यू आर अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, यू डू, आप ही करो, आप रोड बनाओ, आप स्कूल चलाओ, आप हॉस्पिटल चलाओ, बिकॉज सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज होगा. सो विच मीन्स दैट वी आर एनश्राइनिंग एज अ कंट्री कि the only motive that is acceptable, that is good, is greed. There is no other motive. और अगर आपका greed motive नहीं है तो somehow you are lesser than. आप बुद्धू हो, आप बेवकूफ़ हो, आप सपने देखते हो. मुझे लोग बोलते हैं कि अरे क्राइम में तो सब पागल लोग ही भरे हुए हैं. तो मैं कहती हूँ थैंक गॉड पागल लोग भरे हुए हैं. अगर नहीं होते तो शायद हम कुछ कर ही नहीं पाते. तो बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि यू नो ये काम जो है और प्रोत्साहन से हम सीख रहे हैं. हम 40 साल पुराने हैं, लेकिन हमारे अंदर वो एक्सपर्टीज़ नहीं है जो ये लोग इतने जेनरसली, इतने बड़े दिल से हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि हमको क्राई ये कर सकती थी, राइट, गवर्नमेंट के साथ, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ हमने साइन किया. मेरे कॉलीग शुभेंदु हैं यहाँ, किसी को इंटरेस्ट है पूछिए उनसे. और जो NIRD है जो पंचायत्स को ट्रेन करती है, उनके साथ हमारा पार्टनरशिप है. और प्रोत्साहन हमारे साथ उस काम को ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड करने के लिए मदद करेगी. तो देखिए, एक अगर हम सब एक दूसरे में कुछ भी गुण देखें और वो गुण हम इकट्ठा करें, यू नो वी हैव दिस फैंसी वर्ड्स ऑफ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड ऑल दैट. मेरे को उसमें भी गुस्सा आता है बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग बोलते व्हाई डोंट यू NGOs कोऑपरेट. बट ईजी नहीं होता, जैसे इन्होंने अभी बोला है ना, ईजी नहीं है कोऑपरेशन. वो बैठ के फॉर्मलाइज करना पड़ता है ताकि सब लोग सीरियसली इस काम को करें. तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम हर पंचायत, हर BDO होल्डर को, हर चाहे वो डिज़ास्टर के ही लोग हों, अगर उनके अंदर कुछ इंक्रीज्ड यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चे को क्या चाहिए आए डायरेक्टली, तो हमारे सबके काम में कितनी ईजियर हो जाएगा ना. कि चलो एटलीस्ट सामने जो हमारे बैठा है उसके अंदर ये जागरूकता है कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल चाहिए. तो मैं तो कह रही हूँ कि अगर 2 साल के बाद अगर मैं किसी डिज़ास्टर शेल्टर में जाऊँ और वहाँ एक कोना हो जहाँ बच्चों के लिए सामान रखा हो, तो वही बहुत बड़ा स्टेप है. सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू प्रोत्साहन अगेन. Of course.
बहुत सुंदर कोलैबोरेशन और जो बच्चों के लिए एक विजन रखा, थैंक्स फॉर दैट, बट आई हैव सर्टन डिसएग्रीमेंट्स। और मैं हाउस के सामने, आपने एजिज्म के खिलाफ एक बहुत फिक्स सी धारणा करी कि हम ऐसा सोचते हैं, और क्योंकि हम बड़ों का फोकस होता है कि मैं बच्चे को ऐसा बनाऊं, बट as a child specialist and as a doctor who has learned and studied in depth brain development, child psychology and the forebrain, तो अक्ल 18 तक आ जाती है हम कहते थे, अभी हम उस पर भी डिबेट कर रहे हैं कि वो भी 21 पे आती है, समझ 25 पे आती है, और समझदारी की तो कोई उम्र नहीं रहती। सो बच्चे के लिए ही हम जीते थे। तो द कॉन्सेप्ट कि एजिज्म यानी कि दादी बच्चे के लिए जो भी सोचती थी उसमें सिर्फ बच्चा निहित होता था, उसमें उसका स्वार्थ नहीं होता था कि मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा इसलिए इसको स्कूल ना भेजो, या इसको ऐसे वाले स्कूल भेजो जो 9 बजे शुरू हो 6 बजे घर छोड़ जाए। सो नाउ दैट द एज्ड पीपल हैव बिकमिंग more selfish, the mothers are more into me and my rather than we. Probably some part of your criticism towards the ageism of Indian culture, I mean, I may be agreeable, but जब तक वो एजेड लोग सिर्फ बच्चे के भविष्य, उसके सुधार और उसी को फोर फ्रंट बना के, जो कल्चर बहुत पुराना नहीं था, जो हमारी दादी हमारी माँ के टाइम पे हमें मिला, तब तक के लिए वो एजिज्म मेरे हिसाब से as a child specialist doctor, as a person who has been working for 40 years with children, कतई भी बुरा नहीं था। आज क्योंकि माँ उसको डायपर सिर्फ इसलिए पहना दे, भले ही उसे यूटीआई होता रहे, ताकि उसकी इंस्टा की रील में खलल ना पड़े, सो probably then that thought process of ageism may be agreeable. दूसरा, okay, no, but because it is a dialogue, I must put my word. You said डिस्कस करने के लिए आए और बातचीत करने के मौके कम मिलते हैं। मैडम ने एक रिस्पेक्टेबल फोरम से एक अपनी बात कही और मैं उसमें अपना विचार रख रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग सो हम विचार रखने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरा, आपने जो कहा बहुत सुंदर कहा कि सब पागलों की ज़रूरत है, बिकॉज इंटेलेक्ट इज़ व्हाट इज़ किलिंग द सोसाइटी। जब हम सब बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं और बहुत ऑब्वियसली इंटेलिजेंस के साथ एम्बिशन आ रही है, तो आपने कहा ना कि हम सब पागल हैं, लोग कहते हैं, पर पागलों की ज़रूरत, वो उसके साथ मैं आपका एग्री करती हूँ। और ये एक मैसेज है फॉर द मदर्स, फॉर एवरीवन, जो बच्चों को स्मार्ट कंप्यूटर्स बनाने में लगे हैं, भावना को ख़त्म कर रहे हैं, हम फैमिली सिस्टम्स को ख़त्म कर रहे हैं। सो वहाँ पे वो जो इंटेलेक्ट है ना, बस तू पास हो जा, बस तू बड़ा आदमी बन जा, बस तू नंबर ले आ, and killing families. So I think we need to go back to a little pagalpan within the families, and cut down on the importance of intellect, because intellect gives us ambition, it is making us selfish, and of course all the ills that are following with it. Intellect is defined by a certain way कि मैथ्स में अच्छे हो तभी इंटेलेक्चुअल हो, not if you can actually compare or your ability to look at alag experiences and put it together. That is intellect, right? So you got me a little wrong on ageism. I'm not anti old people, please let me get that very clear. I have a 93-year-old who can outthink me anytime. I think my point is that just because we respect everything that comes from an elder, how do we give children agency? कि बच्चों को हम समझते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते, कि वो जो बोलते हैं वो वैलिड नहीं है और हमारी ड्यूटी है. सो टू मी आई एम चैलेंजिंग दैट एज आई एम गोइंग. हमारे काम में हम बढ़ते जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के डिफरेंट एजेस पे, एंड यू नो दैट बेटर देन मी, देयर आर डिफरेंट कैपेसिटीज. मैं नहीं कह रही हूँ कि एक 3-year-old को पूछो कि तुमको स्कूल जाना है या नहीं. या डोंट गेट मी रॉन्ग, राइट? You're going to have to make decisions, but by
respecting and finding the voices for young people. I mean, I am horrified. My daughter goes to 11th grade and she discovers, she runs an impromptu survey of her classmates. उसको पता लगता है कि एक भी बच्चे ने चॉइस नहीं बनाया था क्या सब्जेक्ट लेने का, एक भी. और ये हाइपर प्रिविलेज, यू वुड थिंक जी सब कुछ, राइट? बट नो, दे डिड व्हाट देयर पेरेंट्स टोल्ड देम टू डू. So I think that is my apathy, really. Where are children in all of us? Thank you so much. I'm not going to keep you from lunch.